ठीक है. तो इसमें ना what's left is little things, ठीक है, specifically ionic equations, ठीक है. So we're going to try and do, we're going to try and do ionic equations. एक से स्टार्ट करें. अच्छा, ionic, a lot of times they're going to ask you in the past papers, they're going to ask you not the actual equation, but the ionic equation. Achha, remember you got 4 reactions, right? 5 reactions to be specific. So you had these 5 reactions, iske alawa bhi hain, but I'm going to tell you how to write the ionic equation. So for example, it has something to do with solubility of the substance, and you have to remove spectator ions when you do this. So if you have any equation, let's start with the metal plus acid equation. So I've got magnesium and it's reacting with HCl, and together they're producing salt plus hydrogen gas. Okay, so the salt in this case will be the H will get knocked out, it will produce hydrogen gas, and the salt will be Mg and Cl. Mg is +2, Cl is -1. So formula kya hoga? It's going to be MgCl2, and you're going to balance it. So this is going to be 2HCl. Now it's a balanced equation. How do you convert this equation into an ionic equation? So the way you're going to do this is you're going to write down the states first. Okay. So there are 2 steps, 3 steps. You write states, then you write aqueous compounds in dissociated form. Okay, in dissociated form. और फिर third है कि you're going to remove spectator ions. So you're going to remove spectator ions. That's the last step. वो सारे steps कर लेते हैं. So the states are that Mg is a solid. HCl जो है ना, that's an acid, it's aqueous. ठीक है. Solubility में कि Cl के जो compounds होते हैं, they're all soluble except for silver and lead. So this is also soluble. And H2 is a gas. So that's the first thing. ठीक है. We're going to write the states. Then we're going to write the aqueous substances in dissociated form. Aqueous कौन सा? ये 2HCl and MgCl2. These 2 are aqueous. What that means is कि Mg remains a solid. Dissociated form का मतलब है कि when HCl is dissolved in a solution, तो उसके जो ions होते हैं ना, वो separate होते हैं. Like if you have a container and it's got HCl in it and it's in a solution, और वो स्पून से आपने उसे मिक्स किया हुआ है, शेक किया हुआ है, the HCl, the H+1 and the Cl ions are all floating separately. They're no longer together in water. ठीक है. तो HCl के जो ions होंगे, they're going to dissociate in solution. So you're going to write them separately. So it's going to be 2 H+1 ions and 2 Cl-1 ions. ठीक है. ये भी aqueous है, and this is also aqueous. So just remember that HCl aqueous means that the ions are separate and dissociated. The same pretty much applies to MgCl2 as well. MgCl2 aqueous होगा ना, तो उसके भी ions जो होंगे, they're going to be, it's got 2 ions, Mg and Cl ions. But the Cl ions and Mg ions will be floating separately. ठीक है. पानी के अंदर they will be mixed and they will no longer be together. And anyways, H2 is a gas, so that remains as it is. ठीक है. तो ये हो गया पहला काम. अच्छा, ये पहला काम हो गया. ये क्लियर है? Is this clear? जी सर. अच्छा, अब फिर अगला का पार्ट है कि the last thing. The last thing is you will get rid of the spectator ions. Spectator ions are the ones that are not doing anything, that are not undergoing any change. So in this equation, like if you look at the equation, so you can see the Cl ions are not undergoing any change. वो पहले भी Cl ion aqueous थे, and again you still have Cl ion aqueous. So you're going to cut them out.
ठीक है, you will remove these spectator ends. That's it. So पीछे whatever equation that's left, that's your ionic equation. So I'm just going to वो हटा के I'm just going to rewrite this, and so that's it. ठीक है, I will get rid of the C lines, and that's it. ठीक है, that's my ionic equation. So most of the time it's going to ask you for the ionic equation. So ye Kamna, you can apply the same thing, but remember it's always the aqueous ions that are to be written in dissociated form. Or spectator ions are the ones that don't undergo any change. The others are all undergoing changes. Mgs are solid, now it's Mg plus 2 aqueous. You had H plus 1 aqueous, now it's H2 gas. So you're not going to remove them. So or कोई इस तरह का कर लेते हैं कि I've got let's say NaOH plus H2SO4, but metal hydroxide plus sulfuric acid. So H and OH will form water, and or baki salt hogi. So the salt will be NaN. SO4, Na is group 1, it's plus 1, SO4 is minus 2, so it's going to be Na2SO4, plus there's going to be water. And you will balance it, so right side pe there are 2 Nas, over here there's going to be 2 Na. And H kitne ho gaye? 4 ho gaye left side pe. Over here there are 4 H's. So isko you're going to multiply it by 2. So anyways, your equation is complete. And we're going to try and write the ionic equation in this case. So group 1 compounds ke baare mein, group 1 compounds are all soluble. So that means NaOH is aqueous, Na2SO4 is aqueous because group 1 compounds are all soluble. Acids are all soluble. Or water is a liquid, you can remember that. The second step, you're going to write these aqueous wale, you're going to write them in dissociated form. Unke ions, you're going to write them separately. So we're going to start with NaOH. So wo kya hoga? It's Na plus 1 is separate and OH ions pani ke andar they're dissociated, okay? So it's 2 Na plus 1, 2 OH ions, and they're both aqueous. As I say, H2SO4, that also has to be written in dissociated form. So H2SO4 mein, it's how many ions? You got H plus 1 and you got SO4 minus 2 ions. And it's 2 H plus 1 ions. And so then you have your products. And your product Na2SO4 is also aqueous. Usme kaun se ions? You got Na plus 1 and you've got SO4 minus 2. तो ये दोनों ही aqueous हैं, ठीक है? Plus there's 2 water molecules which are liquid. So that's it, ठीक है? So you've written the aqueous compounds in dissociated form. तो इसमें मुझे बताओगे which ones are spectator ions? and SO4. हाँ ठीक है, SO4 भी spectator ion है, ठीक है? So because they remain completely unchanged, they're not doing anything in the reaction. So at the end of the day, reaction hai ke it's 2H minus 1 aqueous and it's 2H plus 1 aqueous. And product side pe it's 2H2O, that's liquid. Okay. So remember these 2 steps and you'll eventually get your ionic equation. एक इसका shortcut भी है. Sorry. हाँ जी. Sir, is this the final equation, the ionic equation, or we're gonna add them? नहीं बस ये final end में ionic equation है ना, ये वाली. Okay, sir.
मतलब ये फाइनल इक्वेशन, अगर वो आयनिक, अगर इफ ही इज आस्किंग फॉर द एक्चुअल इक्वेशन इज दिस, इफ ही इज आस्किंग फॉर द आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है। तो मैं एक और करूंगा, फिर विल डू पास पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। So let's say I've got a carbonate plus acid, salt, water, or carbon dioxide. Let's say calcium carbonate, calcium plus 2, CO3 minus 2, reacting with nitric acid, HNO3. So the product that's going to be produced is salt, water, and carbon dioxide. So salt will be calcium and NO3. NO3 minus 1 होता है, calcium plus 2 होता है, so it's going to be CaNO3 twice plus water plus carbon dioxide. अच्छा ये सारे हैं। अच्छा अब इसमें ये कि अगेन राइट डाउन द स्टेट्स के कार्बोनेट्स के बारे में क्या था सॉलिबिलिटी टेबल में, कार्बोनेट्स आर ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1, वो जो पहला ग्रुप है ना, दैट सॉल्युबल, ठीक है, अदरवाइज दे ऑल इनसॉल्युबल, ठीक है। तो दिस वन इज अ सॉलिड। एसिड्स आर एक्वस। NO3 जिसमें भी आएगा ना, NO3 तीन कंपाउंड्स है, they were all soluble. Group 1 is soluble, NO3 minus 1 are all soluble, NH4 plus 1 are all soluble. So NO3 is aqueous and water is a liquid and CO2 is a gas. तो आपने किस किस को डिसोसिएटेड फॉर्म, बैलेंस नहीं है, पहले बैलेंस कर लो, 2HNO3 राइट। तो किस किस को डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है, यू हैव टू, ये नाइट्रिक एसिड को लिखो डिसोसिएटेड फॉर्म में, और कैल्शियम नाइट्रेट को इट हैज टू बी रिटन इन डिसोसिएटेड फॉर्म। इन दोनों को डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज टू बी, कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिटन एग्जैक्टली द सेम वे, सॉलिड है ना, तो उसका मतलब है द आयंस आर टुगेदर, वो अलग अलग नहीं हुए। HNO3 डिसोसिएट हो गया बिकॉज इट्स एक्वस, तो 2H+1 2NO3-1, पानी के अंदर ना दे आर डिसोसिएटेड इन एक्वस स्टेट। अच्छा और क्या आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट है, उसके भी आयंस अलग हो गए। उसमें कौन सा आयंस है, कैल्शियम आयंस एंड NO3-1 आयंस, और 2NO3-1 आयंस। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब वो सारे इकट्ठे होते हैं ना, जुड़े हुए होते हैं, तो दैट मीन्स के यू राइट द स्मॉल टू, ठीक है, कि द 2NO3s एंड बट व्हेन दे आर सेपरेट यू राइट द बिग टू। तो ये बड़े टू का मतलब है कि यू स्टिल हैव टू नाइट्रेट आयंस बट दे आर नो लॉन्गर टुगेदर। अच्छा ये aqueous है, दिस इज aqueous and you've got water which is a liquid and you've got CO2 which is a gas। तो अब इसमें बताओ कि which one is your spectator ion? 2NO3. ठीक है, तो ये जो 2NO3-1 है, it underwent no change, कुछ भी नहीं हुआ उसे, तो इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है। That's your spectator ion, you just get rid of that and the remaining is going to be your ionic equation, यानी it's going to be calcium carbonate solid plus 2H+1 aqueous, और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में calcium plus 2 aqueous plus H2O liquid and CO2 is a gas। तो आयनिक इक्वेशन काइंड ऑफ टेल्स यू कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज रिएक्टिंग, लाइक NO3 is not doing anything in this reaction। तो that's your आयनिक इक्वेशन, ठीक है। खैर अब वो पास पेपर्स डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें जो भी चीजें अभी हमने वी हैव a lot of stuff to still cover in acid basis salts, especially acid rain और फर्टिलाइजर्स वगैरह। वो जैसी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं उसके साथ ही वो कर लेते हैं। तो वे डन विद सॉल्ट प्रेपरेशन, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी टाइम ना इधर बोर्ड के ऊपर पे मैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है, सारा उसका। तो ये भी ग्रुप के ऊपर है, ठीक है। तो 440 आई गेस, 27।
अच्छा ये आ गया दिस वन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा मैं जो भी चीज अब आएगी ना बीच में वो मैं फिर एक्स्ट्रा साथ साथ वो ऐड करता रहूंगा कि मेन चीज हमने कर ली है बाकी फिर बोर्ड पे साथ साथ करते रहेंगे So he's saying hydroiodic acid is a strong acid. It salts are iodides. I said, remember I told you that any acid is what? It's just an H plus one ion because acid produces H plus one attached to any random ion. अब वो Cl भी हो सकता है, nitrate हो सकता है, it could be carbonate, it could be sulfate. So that's all acids have this structure. तो इधर ना he's asking for ये hydroiodic acid है, ठीक है? तो HI. It's H is plus one, I is group 7, so it's minus one, ठीक है? So again, it's like an acid like HCl. तो मुझे बताओ ये metal plus acid reaction होगा तो the H will get knocked out. It will produce H2 gas. और जो remaining होगा ना that's going to be your salt. तो lithium and I is minus one क्योंकि group 7 में है and lithium is group 1, so that's plus 1. तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है? It's just going to be LiI. और वो चार्जेस नहीं शो करते, ठीक है? So you don't उसके ऊपर से ना चार्जेस हटा देना, ठीक है? You don't show the charges. So again, your equation is complete, but it's not balanced. तो बैलेंस करना शुरू कर दो तो H यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो दिस साइड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो फिर क्या होगा? आयोडीन भी 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. तो you're gonna multiply this by 2. फिर लिथियम भी डबल हो जाएगा, सो लिथियम विल गेट डबल्ड एज वेल. ये क्लियर है? जी सर. अच्छा अगली वो है कार्बोनेट प्लस वही एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. उससे इक्वेशन ही मांगी, वर्ड इक्वेशन मांगी, बट आई एम गोना राइट द इक्वेशन एनीवेज. जिंक का हमेशा याद रखा, जिंक इज नॉट इन एनी ग्रुप, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जिंक का जो चार्ज है ना इट्स ऑलवेज +2. मतलब जिंक का चार्ज याद रखना है, ठीक है? रिमेंबर जिंक इज वो ट्रांजिशन मेटल वाले ब्लॉक में आते हैं, बट इट्स नॉट रियली अ ट्रांजिशन मेटल. इट डज नॉट शो ट्रांजिशन मेटल प्रॉपर्टीज. तो ये किसी ग्रुप में नहीं होता, बट यू हैव टू रिमेंबर कि उसका जो चार्ज है ना दैट्स +2. अच्छा इसका रिएक्शन हो रहा है HI के साथ, तो अगेन क्या होगा? वो कार्बोनेट और H जो है ना वो मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे. सो यू गोना गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यू गोना गेट वाटर, और पीछे जो रह गया दैट्स गोना बी योर सॉल्ट व्हिच इज जिंक +2 और I के -1 है, ठीक है? तो इट्स गोना बी जिंक. अच्छा तो उसका नाम लिखना है बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन में. सो दिस इज गोना बी व्हाट? जिंक आयोडाइड. ये हमने पहले पढ़ा था, वो जो नेगेटिव आयन होता है ना उसका नाम के एंड पे क्या आ जाता है? इट्स आइड. मतलब आयोडीन होगा तो इट्स गोना बी आयोडाइड. अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन होगा तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्साइड, ठीक है? क्लोरीन का नेगेटिव आयन होगा तो इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड क्लोराइड. तो दिस वन इज जिंक आयोडाइड एंड दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट्स वाटर, ठीक है? वो तो वो इधर मेंशन कर दो. और अगला रिएक्शन है कि ऑक्साइड प्लस HI. तो ये वही मेटल ऑक्साइड प्लस HI, तो ऑक्सीजन और H मिलके वाटर बना लेंगे एंड Mg and I will form the salt. Mg is group 2, I is -1, तो सॉल्ट क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी MgI2. ठीक है? क्लियर है? और इसको बैलेंस कर लेना, ये जी सर. 2 आए हैं तो 2H2 हो गए, ठीक है? H भी हो गए बैलेंस. अच्छा now two of the reactions are acid base and one is a redox. Which one is a redox? And explain your choice. तो ये जो क्वेश्चन है कि which one is a redox, ये हमने शायद उस टाइम पे डिस्कस भी किया था जब मैंने वो 5 रिएक्शंस बताए थे ना सॉल्ट प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं. ये मेटल वाला किधर गया? मेटल कार्बोनेट था, ये था, हाँ. अच्छा ये मैंने कहा था कि ये जो मेटल प्लस एसिड रिएक्शन होता है ना दैट्स नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन. The others were all acid base reactions. जो मेटल वाला रिएक्शन होता है ना दैट्स अ रीडॉक्स रिएक्शन. उसके अंदर ना क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में होता है कि the acid produces H+1 and the base accepts H+1.
जैसे ये बाकी रिएक्शंस नहीं है, कार्बोनेट वाज अ बेस। आई टोल्ड यू के मैंने एक्सप्लेन किया था देयर वर 4 बेसिस। वो कहाँ गई 4 बेसिस? यहाँ पे आई had explained to you कि there were 4 bases: oxide, hydroxides, carbonates and ammonia. इनके reactions जब भी acid के साथ हो गए ना, they're going to be acid based reaction. The acid produces H+1 and the base will accept H+1 ion. Carbonate इसका H+1 accept करता है, ठीक है? Ammonia accepts the H+1. तो these acts as, they all act as bases. तो लेकिन metal नहीं, ठीक है? Metal was a redox reaction because redox वो होता है reaction जिसमें electrons are lost and gained. तो the first reaction is not a redox reaction, ये जो A है। Why? क्योंकि इसके अंदर no one is accepting the H+1। मतलब वो H रिलीज तो हुआ था यहाँ से, लेकिन वो हवा में चला गया था ना, H2 गैस बन गया था। So it's not an acid based reaction because no one accepted the H+1, ठीक है? तो ये redox reaction है क्योंकि एक neutral metal atom था, now it has turned into an ion, so it has lost electrons। तो इसका जो होगा ना, remember always कि metal plus acid reaction जो है ना, that's a redox reaction। तो which one is redox? That's reaction number 1। और उसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि why is it a redox reaction? Because उसमें आप बताओगे लिथियम loses electrons क्योंकि लिथियम मेटल था and now it has turned into lithium ions। तो anything that loses electrons उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, किसी को पता है? अलीना क्या टर्म होगी if something loses electrons? Oxidation. ठीक है, वो ऑक्सीडेशन है। Oxidation. तो आप बताओगे लिथियम loses electrons getting oxidized, एंड जो हाइड्रोजन है ना वो एसिड में H+1 दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? वो न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है? तो द H+1 gains electrons and that will be called reduction, ठीक है? अच्छा, अगला वाला कि खैर इसको स्किप कर रहे हैं अभी या ना करें। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड बाय बबलिंग क्लोरीन थ्रू दीज टू एसिड्स। अच्छा, खैर इसका एसिड बेस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वी गोना डू दिस एनीवेज के डू यू नो पीरियोडिक टेबल, उसमें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स, व्हाट हैपेंस टू इट? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और डिक्रीजेस? Increases. एक मैं पेज और अलग बना लूं That कि decreases. हाँ वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है? अच्छा, मैं इसका ये केमिस्ट्री के ना पास में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? विच इज के एसिड बेसिस सॉल्ट्स के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें हर चीज आ रही होगी। तो रिमेंबर इफ यू हैव अ पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? तो you've got metals on one side and you've got non-metals on the other side. अच्छा, metals में across the board ना, remember this के when you go down the group, तो जो reactivity है ना that increases metals में, ठीक है? वो हमेशा increase करती है। Why does it increase? क्योंकि when metals have to react, they always lose electrons. Metals की metals होते ही वही है कि it loses electrons, right? तो and it always forms positive ions when it reacts. तो जो बड़ा एटम होगा ना, it will be easier for it to lose electrons because the electron is going to be very far away, ठीक है? So it's easier for bigger atoms to यानी वो उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतना दूर होगा ना कि द इलेक्ट्रॉन कैन बी easily lost, which means के they'll be very reactive, they'll be losing electrons very very quickly। ये क्लियर है मेटल्स का? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा जो है ना नॉन मेटल्स, उसमें उल्टा होता है। उसमें होता है कि when you go down the group,
तो व्हाट हैपेंस इज के रिएक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज करती है, क्यों? उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, ठीक है। सो द रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। तो जो छोटा एटम होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू इट, सो इट इज एबल टू गेन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्विकली। जैसा आयोडीन है ना, अब वो आयोडीन के लिए ना इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आयोडीन आयोडीन ऑलरेडी हैज 53 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। तब ये सोचो कि उसका जो न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव न्यूक्लियस, देयर इज ऑलरेडी 53 इलेक्ट्रॉन्स। वो न्यूक्लियस बेचारा बीच में, ठीक है, सराउंडेड बाय 53 इलेक्ट्रॉन्स। So if it wants to attract another electron, so the nucleus already has too many electrons. ठीक है, तो it will be very hard for it to, कि उसके इर्द पहले इतने इलेक्ट्रॉन है ना कि वो एक और इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो होगा ना उसके लिए इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर इट टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना बड़ा एटम होगा ना नॉन मेटल का, द मोर डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर इट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। बल्कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, वो उसको करीब भी नहीं आने देंगे, ठीक है। डू यू गेट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. जी अच्छा, सर। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, so it's basically difficult for bigger atoms to gain electrons because they already have too many electrons. अच्छा, खैर क्वेश्चन ये वाला जो था ना वो रिएक्टिविटी के ऊपर था कि सो रिएक्टिविटी विल बी के, उधर ही चले जाते हैं। अच्छा, एक वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वहां पे कि रिएक्टिविटी का करना क्या है, वो ये कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस है। अच्छा, a more reactive displaces a less reactive element from its compounds. यानी अगर मेरे पास NaBr होगा ना, if I reacted with chlorine, so chlorine is more reactive. Chlorine is going to knock out NaBr from NaBr because chlorine is more reactive ना। तो वो क्या करेगा, वो उसको बाहर निकालेगा और उसकी जगह पे ले लेगा। तो NaCl बन जाएगा and the Br is going to get knocked out. Br diatomic है तो it's going to form Br2 and you can balance it, ठीक है। So it's going to be दो Cl है तो दो NaCl and 2Br तो 2 NaBr, ठीक है। So that is what you do with reactivity. A more reactive displaces a less reactive. So coming back to this question, वो क्या bubble कर रहा है? Is bubbling chlorine through it. So if chlorine is bubbled through HI, मुझे बताओ कि is chlorine more reactive than iodine? है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा? आयोडीन विल गेट नॉक्ड आउट, इट विल फॉर्म HCl एंड आयोडीन गेट्स नॉक्ड आउट, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्लोरीन विल रिएक्ट विद HBr, और सेम चीज होगी because chlorine is more reactive, so it will knock out the Br and it will take its place HCl and Br2 will get knocked out, ठीक है। और उसको बैलेंस कर लो तो there's going to be 2, ऊपर भी 2 होगा और Cl2 है तो 2HCl 2HCl, right? खैर he didn't ask for the equation by the way, ठीक है, इक्वेशन हमने वैसी लिख दी है। तो इक्वेशन completely irrelevant है, we were not even asked about the equation. अब बताओ, describe how you could distinguish between these two acids using these reactions. किस तरह पता लगेगा कि ये दोनों एसिड्स में से कौन सा H है कौन सा HBr है? What would be the observations? By their colors. इसमें आयोडीन, पहले वाले में आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे बताओ कि what will you see when iodine gets produced?
पर्पल हाँ वैसे इसके आयोडीन के ना बहुत सारे कलर्स होते हैं। Brown. हाँ एक है कि यू कैन राइट के पर्पल नहीं होता, कि आयोडीन पर्पल ना गैस में होता है। आई डोंट थिंक गैस प्रोड्यूस होगी। अगर तो आयोडीन सॉलिड होगा ना तो ग्रेश ब्लैक सॉलिड। लेकिन क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन aqueous solution ना, तो आई थिंक सम ऑफ द आयोडीन विल बी dissolved as well. When it's dissolved it's brown solution, ठीक है। तो that's going to be brown solution। अच्छा ब्रोमीन का क्या कलर होता है? Orange, red. ठीक है ठीक है। ऑरेंज। हाँ हमारा रेड ऑरेंज लिक्विड, ठीक है। अच्छा that's going to be red orange liquid। तो ये दो चीजें होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली वो दिस इज व्हाट यू वर सपोज्ड टू राइट, नॉट द इक्वेशंस यू हैड टू राइट। कि भाई वो उसमें you'll see a grayish black solid forming and brown solution forming, and in the other one you're going to see a red orange liquid forming, ठीक है। अच्छा ये है कि this one over here is saying कि there's NaOH metal hydroxide reacting with hydroiodic acid, ठीक है। He's given you the equation। तो आई थिंक NaOH उसने ना बीकर में रखा हुआ है, ठीक है। he told us that NaOH is in a beaker। और ऊपर से ना he's saying 1 cm³ portions of hydroiodic acids were added। और वो हर दफा ना तो ऊपर से ना he's adding HI। तो वो कह रहे explain why the temperature increases rapidly at first then stops increasing। तो पहले बताओ why is the temperature increasing in this reaction? अगर वो increasing है तो उसका क्या मतलब है कि is it an exothermic reaction or is it an endothermic reaction? Endothermic. ठीक है so that's going to be नहीं एंडो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा सर एक्सोथर्मिक। है। हाँ एक्सोथर्मिक में ना एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट इंक्रीजेस टेम्परेचर, ठीक है। सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये मैं इधर ऐड भी कर लेता हूँ कि रिमेंबर कि ये जो एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं ना they're all एक्सोथर्मिक। मतलब ये अलग चैप्टर है वैसे इसका, लेकिन जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ कि दे ऑल अच्छा देर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो फिर रुक क्यों जाता है? व्हाट हैपेंस एट 18 cm³ दैट कि जब आप HI ऐड कर रहे थे ना, आफ्टर यू एडेड 18 cm³, the temperature starts to drop। So what does that indicate? Anyone क्या होगा? क्यों ड्रॉप कर रहा है टेम्परेचर? विशाल क्या होगा? लीना, सजेब क्या होगा? बहुत सिंपल सा है वैसे कि NaOH खत्म हो गया होगा ना, ऑल द NaOH probably reacted। तो उसका मतलब है रिएक्शन has stopped। बट दिस पॉइंट पहले वो एनर्जी रिलीज हुई जा रही थी ना, दैट meant that the reaction was going on। इस पॉइंट के ऊपर उसका मतलब है कि द रिएक्शन स्टॉप्स, ठीक है। तो आफ्टर 18 cm³, reaction stops। Why does it stop? कि नीचे फ्लास्क में ना you're still adding HI but there's probably no NaOH left। ठीक है ये क्लियर है?
जी Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा सजेस्ट, ये उसने आगे लिखा हुआ है पहले, ये तो अगले में पूछा हुआ है। नहीं उसमें भी पूछा हुआ है एंड फर्स्ट देन स्टॉप्स इंक्रीजिंग, वो तो ठीक है। Suggest why the temperature drops after the addition of 18 cm3। अच्छा वो कह रहे हैं कि इधर वो पूछा था कि स्टॉप हो गया, but then why does it drop? क्योंकि it will come back to room temperature, क्योंकि once, क्योंकि अब कोई एनर्जी नहीं है ना, so it will lose energy to the surrounding। यानी आप पानी अगर हीट कर रहे हो ना किसी स्टोव के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जब स्टोव बंद कर दो तो वो टेम्परेचर वापस इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। एंड it's going to eventually comes back to रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा बाकी खैर मोल्स वाला भी पार्ट नहीं कर रहे। अच्छा ये वाला बता दो, इसमें बाकी चीजें भी टेस्ट होंगी। which an element which reacts with cold water, which one is an element that reacts with cold water and probably rapidly with cold water? अगर किसी को कुछ पता है कौन सा मेटल होता है जो कोल्ड वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है, और कौन से ग्रुप में होता है? सर ग्रुप 1। हाँ ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं दे वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो इस पहले वाले का तो आंसर जो है दैट्स रुबीडियम, ठीक है, कि इट्स अ ग्रुप वन मेटल। और वो भी ग्रुप वन में ना बॉटम पे हमने वो पढ़ा था कि जो बॉटम वाले होंगे दे गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रुबीडियम इज समवेयर ओवर हियर, इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव। चलो अगला बताओ कि इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक कौन Iodine. आयोडीन, ठीक है। डायटोमिक होते कौन कौन से हैं? ग्रुप सेवन सारा का सारा, फ्लोरीन क्लोरीन Seven. ब्रोमीन, Fluorine. Bromine. हाँ वो सारे डायटोमिक होते हैं, प्लस वो होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे आर डायटोमिक। H2 होता है, O2 होता है और N2 होता है। दीज एटम्स जब वो न्यूट्रल स्टेट पे होते हैं ना, दे नेवर एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये तो खैर आयोडीन हो गया, ऊपर से वो इट इज अ सॉलिड। अच्छा इनमें से विच वन इज गोइंग टू फॉर्म two different oxides, which basically means it has variable charges? ये किन एलिमेंट्स के पास वेरिएबल चार्जेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में? सर Transition. आयरन। हाँ तो आयरन होगा। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, बाकी होंगे फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट, ग्रुप वन टू थ्री, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं they've got वेरिएबल चार्जेस, तो वो आयरन है। अच्छा वो Fe है। इनमें से मुझे बताओ कि द एलिमेंट हैज अ हाइड्राइड ऑफ द टाइप XH3, यानी वो तीन बॉन्ड्स बना रहा है। मुझे बताओ कि तीन बॉन्ड्स कौन बनाता है, कौन से ग्रुप वाला एलिमेंट? हाँ सर ग्रुप 5। ग्रुप फाइव, हमने वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था दैट ग्रुप सेवन मेक्स वन बॉन्ड, ग्रुप सिक्स मेक्स टू बॉन्ड, और फाइव जो है ना दैट मेक्स थ्री बॉन्ड्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस होगा, वो ग्रुप फाइव है। अच्छा ये मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है कार्बन की तरह, जिसका कार्बन की जैसा होता है? Silicon. हाँ सिलिकॉन। ठीक है, वो सिलिकॉन है, वो भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो तो ये कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू कुड शो दैट फास्फोरस एसिड is a weaker acid than hydrochloric acid। 3 मार्क का है। But how would you showcase something is a weak acid, the other one is a strong acid? It releases less H plus ions. हाँ लेकिन शो किस तरह करोगे लैब में? By the use of indicator. और वो स्पेसिफिकली ना कौन सा इंडिकेटर होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो हमने लिखा था। Universal indicator. हाँ
ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। वो इधर हमने टॉप पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स किए थे, उधर मैं ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट्स गोइंग टू बी यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो शो करता है और उसके कलर चेंजेस ना, यू शुड नो अबाउट द कलर चेंजेस। तो वो रेड होता है इन स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर ऑरेंज होता है इन वीक एसिड, ग्रीन होता है व्हेन इट्स न्यूट्रल, ब्लू होता है व्हेन इट्स अ वीक बेस, और पर्पल होता है व्हेन इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल, ये क्या होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू गोना डू इज कि इसमें बस बताओगे कि यू गोना यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, द स्ट्रॉन्ग एसिड विल show a red color, the universal indicator paper will turn red for strong acid, and for weak acid it will turn orange, ये येलो ऑरेंज। तो वो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको बैलेंस भी कर लो, तो बैलेंसिंग तो आसान है, 3 Cl है और एच कितने हो गए, 3 and 3 that's 6, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके क्वेश्चंस ना वो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये नोट कर ले कि क्वेश्चन 3 पे हम इस पे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.